आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कार्यभार संभाल लिया है, जिसके बाद आज उन्हें साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही मनोज पांडे नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन को सीधा संदेश देते हुए कहा कि हर मुश्किल हालात के लिए देश तैयार है। तो नए आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कार्यभार संभाल लिया है। मनोज मुकुंद नरवणे के रिटायर होने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी संभालते ही वो सबसे पहले वॉर मेमोरियल गए। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सम्मानित किया गया। और अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद मनोज पांडे नए आर्मी चीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए भारतीय फौज, भारतीय सेना बिल्कुल मुस्तैद है और तैयार खड़ी है। आर्मी चीफ ने कहा कि अगर उकसावे की कार्रवाई होती है तो हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि एलएसी पर किसी भी तरह की पोजीशनिंग में डिफरेंसेस होने में और तब्दीली करने का बिल्कुल मन नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय सेना है वो वहीं बनी रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा है और वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले का हल निकाला जाए। So the situation on the line of actual control as on date, I would say, is normal. The unilateral and provocative actions by our adversary with an aim to alter the status quo by force, I feel have been adequately responded to. And over the last 2 years, we have carried out continuous threat assessment and likewise realigned and reoriented our forces. As far as the situation on the LAC is concerned, our troops are there in a very firm, resolute, in a peaceful manner and ensuring that there is no change in the status quo. Also, our troops are holding important physical positions. But in all this, we are very clear that we will not permit any changes in the status quo and any loss of territory. As far as what are we doing, of course, the process of talks between the two sides is ongoing because we believe that that is the way forward. Only when you talk to each other can you find resolution. So we are confident that as we continue to talk with the other side, we will find resolution to the ongoing issues. As far as the situation on our western borders with Pakistan specifically is concerned, the DGMO's understanding which we arrived at a year plus back, that has helped us in improving the situation on ground. And that has also helped the civilian population on either side of the line of control to live in a better fashion. However, I must admit that in terms of reduction in the terrorist infrastructure and terrorist training camps, neither is there any evidence nor there are any signatures of that happening. On the contrary, we find that the number of terrorists who are operating has increased. Whilst on the LC itself, the infiltration has gone down and so have the violence levels. But in the hinterland, there is no indication to that effect. But what is significant is that because of the success of our counter-infiltration operations and counter-infiltration grid, from the other side, there is exploitation of the narco-terror nexus. In that you now see cases where there is smuggling of contraband items, smuggling of weapons, etc., which is happening across the international border, both in the states of Jammu Kashmir and further south. But we are clear and we are resolute that any act of terror and any hybrid threat that is posed on us from the other side, be it in terms of infiltration, terrorist attacks, or radicalization through social media, a number of other means, we are resolute on our effort to counter this, and I'm sure we'll succeed in this. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप दत्ता मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, नियुक्ति के बाद मनोज पांडे ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी
कि पाकिस्तानी इलाके में पीओके में जो आतंकवादी कैंप्स बन रहे हैं उनमें किसी भी तरह की कमी नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा कि एलएसी पर किसी भी तरह की तब्दीली के लिए हम कतई तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए दो चीजों पे जनरल मनोज पांडे जी ने इस समय बातचीत करी है। एक तो उन्होंने चाइना और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की और दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भारत का स्टैंड है वो यही है कि स्टेटस को किसी भी हालत में मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि जब गलवान हुआ था 2 साल पहले तो उस वक्त भी भारत ने यही कहा था कि हम एक भी इंच अपनी धरती का किसी को देंगे नहीं। हालांकि काफी अपोजिशन पार्टी लीडर्स ने सवाल किए थे उस समय भी, और आज भी उन्होंने क्लियर किया है कि जो फिजिकल पोजीशन है, डोमिनेटिंग पोजीशन है, वहां पे भारत की फौज है, स्टेटस को पूरी तरह से मेंटेन किया है। और जो बातचीत का सिलसिला दोनों देशों के बीच में जारी है, 15 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं और इसी टॉक्स के जरिए वो कोशिश करेंगे कि मसले का हल हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लॉजिस्टिक्स पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, रोड्स बनाई जा रही है ताकि भारत की फौज को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी इक्विपमेंट जो है, बड़ा ही अच्छा इक्विपमेंट जो है हमारी जो फौज है इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उन्हें दिया जा रहा है। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल की पाकिस्तान की बात की, उन्होंने कहा इन्फिल्ट्रेशन लेवल कम हुआ है क्योंकि हमारी जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है काफी स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो हिंटरलैंड में आतंकवादी गतिविधियां वो बढ़ी हैं, वो चिंता का विषय। और दूसरी चीज है कि पाकिस्तान की नार्को टेररिज्म, यानी कि किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होती है, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन युवाओं को वर्गलाकर उनको ड्रग्स की लत लगाना चाहते हैं। इसी वजह से नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके साथ भी निपटने के लिए फौज पूरी तरह से तैयार है, उसमें पूरी कोशिश करेगी कि तो की स्मगलिंग करके जो नार्को भेजना चाहते हैं उसमें पूरी रोकथाम लगे। यानी जो नए सेना प्रमुख है वो भी इतनी सख्त हैं और उन्होंने दो टूक कह दिया कि चीन पाकिस्तान की हालात के निपटने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।